हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब टू ऑल द व्यूअर्स वाचिंग दिस वीडियो एंड तो कैसे हो आप सब लोग और कैसे आपके हालात जज्बात और आपके ख्यालात। तो बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रहा है तो आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, कूल होंगे, और अगर नहीं है तो आई एम डैम श्योर आप लोग हो जाओगे कूल जस्ट बिकॉज यू आर वाचिंग टू 90.4 वॉइस ऑफ सोवा रेडियो कम्युनिटी विथ योर कूल स्टूडेंट आरजे अविनाश। तो आज हम हैं ITR कॉलेज में। जी हाँ गाइज, ITR कॉलेज में, और आज है एक स्पेशल डे। हाँ, आज एक स्पेशल डे, वो स्पेशल ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए है। तो गेस कर लो, जिसको पता है आज 15 सितंबर है, जिसको पता है आज कौन सा स्पेशल डे है, वो कमेंट पे ज़रूर लिखना क्या स्पेशल डे है आज। और जिसको नहीं पता गूगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आज है इंजीनियरिंग डे। जी हाँ गाइज, आज इंजीनियरिंग डे है। वही इंजीनियर जो एक सोसाइटी का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर होता है, जो कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो चलिए आज उसी इंजीनियरिंग के लाइफ के ऊपर कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ उनके लाइफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए कुछ इंटरेक्शन करते हैं हमारे फैकल्टी के साथ और कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट के साथ। सो लेट्स गो। Myself, Dr. Sarada Prasannapati. I am a professor in the Department of Computer Science, ITR, SOA DMTV University. Now on this eve of Engineers Day, I would like to wish a happy Engineers Day to the entire engineering fraternity and at the same time to my students who are the future engineers. Now as a professor, I would like to take a moment to acknowledge and at the same time congratulate all the engineers, their hard work, their dedication and their passion to this field of engineering. Now as I always says, engineering is not all about calculating, computing, numbers, equations, algorithms. No, it's basically about transforming your ideas into reality, to see to it that through us the real world problems get solved. That's the basic task of an engineer. And always you remember, any professional field is always filled with challenges. There is no such field, or there is no prosperity without challenges. But you always remember, challenges also bring opportunities. There is always abundance in terms of opportunities, in terms of proving your skills, and to promise to see to it that the mankind gets a better future. Professional careers are always filled with challenges. It may be engineering, it may be medical, or you take on any professional career. There would be challenges, there would be expectations, there would be hurdles, there would be demands. But at the same time, one student should always remember that the student at this point of age is so energetic and is such a valuable element of the entire society. So self-being and the well-being of your mental health, remember students, always carries more importance in life than these professional benchmarks. Maybe in terms of performing good in your exams, or getting a better job opportunities. See, these things would come, but not at the cost of getting into depression, getting into anxiety. No, they are nowhere. All these things should not be there around you. Look at you, look at yourself in the mirror, look at your age, look at the energy, the exuberance, the confidence, the talent that you possess. It may be a matter of time. So there are a lot of ways that you can get rid of these this negativity, these negative thoughts that are coming to your mind. Okay, see to it, you open up with your friends, with your peers. Be yourself organized, be yourself very composed. Okay, if any problem comes, the first and best solution to any problem is you chuck it down first. Once you chuck it down a problem, it gets solved automatically. Okay, and you must open up to your peers, to your friends, to your professors, to your family members. Okay, because small hurdles would always be there, because you want to achieve something better, something best for yourself. Okay, so take these small negativity as challenges only and try to overcome it. There where lies success. So guys, I would appeal to all of you on this Engineers Day.
let's push our boundaries, let's push our limitations, let's keep innovating, and let's pursue our dream with determination, and let's promise it to the entire society that we are there to create a better future for you. Thank you. तो आपका नाम? एकता झा, दिस इज एकता। सौम्या बेहुरा। हाय, दिस इज शुभश्री। ओके, वेरी गुड। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप लोगों ने इस ITR कॉलेज में, इस इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करवाया, आपके माइंड में क्या था कि कुछ चीज़ें यहाँ की जो आपको इंस्पायर कर गई, या किसी के फोर्स में आकर पेरेंट्स के आपने एडमिशन ले लिया? नहीं, ऑफ कोर्स आई हैड रिकमेंडेशंस फॉर दिस कॉलेज कि ये कॉलेज अच्छा है, सो दैट्स वाई लाइक मुझे इंजीनियरिंग करना था, दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म, सो दैट्स वाई आई वाज इंस्पायर्ड। It was a mixed reaction. It was from parent pressure also, and somehow like my interest was also there. पीयर प्रेशर, तो क्या आप दोनों में भी ये पीयर प्रेशर आया था कभी ना कभी? हाँ, इट वॉज कॉमन, क्योंकि सारे लोग इस इंजीनियरिंग में जा रहे थे उस टाइम, तो लगा कि शायद दिस इज़ अ सेफ ऑप्शन टू गो विद दिस। ओके सौम्या, तो मेरा सवाल ये है कि आपने ये पीयर प्रेशर के बारे में हमने सुन लिया, तो क्या आपको भी कभी लगता है कि ऐसा स्ट्रेस, डिप्रेस टाइप फील होता है आपको कॉलेज की पढ़ाई करते वक्त? ऑब्वियसली हाँ, इतने सारे बच्चे, इतनी सारी कंपटीशन है, तो वहाँ पर स्टैंड आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, और मोस्टली हमें यहाँ से एक प्लेसमेंट लेकर जाना है, तो वी हैव टू स्टैंड आउट। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है डे टू डे लाइफ में, ऐसा कोई मोमेंट, कोई फ़नी मोमेंट या कोई ऐसा मेमोरी जो आप हमसे शेयर करना चाहें और ऑडियंस के साथ? मैं थोड़ी सी इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ हूँ, तो फिर मेरे साथ ऐसा कुछ सिर्फ हुआ नहीं है फ़िलहाल तो, बट एक और सवाल मेरे माइंड में आया कि हमारे अंदर एक पीयर प्रेशर के साथ साथ एक फ़ियर भी होता है एजुकेशन का, तो क्या वो फ़ियर, उसको ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं तो अपने फियर का अभी तक ओवरकम नहीं कर पाई हूँ, पर मेरे लिए रिलीफ है अपने रूममेट्स के साथ रात को बैठ के बात करना, गॉसिप करना, दैट्स में हाँ मेरा माइंड फ्रेश हो जाता है उसमें। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन में रहते हो, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो कि आजकल के लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। और एक सवाल मेरे माइंड में और आया कि आपके पेरेंट्स से, ऑब्वियसली वो आपको यहाँ भेजें तो आपके पेरेंट्स का भी कुछ एक्सपेक्टेशन होगा, राइट? तो कभी ना कभी आपको उस एक्सपेक्टेशन पे अगर आप खरा नहीं उतर पाते हैं तो कभी ना कहीं आपको भी बुरा लगता है और पेरेंट्स को भी। तो अभी तो फ़िलहाल प्लेसमेंट आया नहीं है और प्लेसमेंट आने वाला है, तो मैं जानना चाहूँगा कि जितने भी अभी न्यू एडमिशन लेने वाले हैं सारे बच्चे, उनको आप एक एक पॉइंट अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? ओके, आई विल जस्ट से कि स्टार्टिंग से अगर हम लोग प्रैक्टिस करते रहे तो फिर लास्ट में उतना बर्डन नहीं बनेगा, और इन केस अगर लास्ट मोमेंट में कुछ अब सीन हो भी जाता है तो आई डोंट थिंक सो प्रेशर लेना कोई एक ऑप्शन हुआ। अगर प्रेशर लेंगे तो फिर वो और बिल्डअप होगा और सब चीज़ वर्स ही होंगे कंडीशन में। तो जस्ट गिव योर बेस्ट, ताकि लास्ट मोमेंट पे लाइक जस्ट कीप गिविंग योर बेस्ट, जस्ट कीप पुशिंग योर सेल्फ जब तक बेस्ट ना मिल जाए। तो मतलब अपना 100% देना है, सब में अपना बेस्ट देना है, राइट? और आपका क्या मैसेज है? अब मैं बोल तो दूंगी कि तुम लोग स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट कर दो, स्टार्टिंग से करना, बट मुझे पता है ये वीडियो देखेंगे फिर वो लोग खुद रील स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि हम लोग ने भी वही किया था, हमें भी कितने सजेशंस मिले थे, हमें भी रियलाइजेशन होता है यार स्टार्ट कर लेना चाहिए, बट करते 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 अभी 3rd ईयर पे आ चुके हैं हम लोग ऑलमोस्ट। तो मैं वही बोलूँगी, अब वो लाइफ है, उन लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं कॉलेज, उन्हें भी इन्जॉय करना है। अब वो लोग भी इतने मेच्योर नहीं हुए कि अभी से सोच ले कि हाँ पढ़ लेना है, हमें अभी रियलाइज़ हो रहा है कि पढ़ लेना चाहिए था। तो वो इट्स लाइक इट्स लाइफ यार, अब ठीक है, अब नहीं हो पाया तो जब टाइम आएगा तब कर लेना। लाइक हाँ, अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, बट ठीक है अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो जिस टाइम पे आपको जो लगे कि नहीं अभी मेरे को टाइम आ गया करने का, तब आपको अपनी लाइक फुल पोटेंशियल पे करना है। ओके ऑडियंस, तो जैसा कि आपने इतना अच्छा एडवाइस सुन ही लिया है, और आई होप कि आप इस एडवाइस को मानेंगे भी। टाइम से पढ़ना भी चाहिए और टाइम से मस्ती मजाक भी होनी चाहिए, और हालांकि ये कॉलेज लाइफ है तो कॉलेज लाइफ में मस्ती मजाक भी होनी चाहिए। So guys, we are having with our some student engineers. Let's have some interaction with them. Okay. So what's your name? मानव। धर्मेश। सिद्धार्थ। Okay. तो अभी आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हो? हाँ। कौन सा ब्रांच मतलब? CSIT। CSIT तीनों CSIT से हो? अच्छा, एक स्पेशल क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो मतलब ये इंजीनियरिंग करने का मतलब जो इच्छा है या फिर जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से है? मतलब कुछ ऐसे स्पेशल इवेंट हुआ या फिर कोई स्पेशल जो पर्सन है जो इन्फ्लुएंस्ड किया आप लोगों को, या फिर मम्मी पापा के कहने पे आ गए मतलब इंजीनियरिंग करने इंजीनियरिंग कॉलेज को? ऐसे मम्मी पापा के कहने से तो नहीं, एक्चुअली ऐसा कुछ इंस्पिरेशन नहीं है, बट बचपन से ही मेरे को काफ़ी फ़्लाइट्स और जितने एविएशन के चीज़ें हैं मुझे उसमें इंटरेस्ट था, एविएशन में इंटरेस्ट था। तो फ़्लाइट के अंदर जो कंप्यूटर है एंड ओवरऑल जितने फुल फ्लाइट्स जो होते हैं मेरे को उसमें शुरू से इंटरेस्ट रहा है, तो बस इसीलिए। ओके, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग मतलब भैया बोलना चाहते थे, तो आपका मतलब क्या सीन है?
मेरे घर पे लगभग सबको इंजीनियर ही है, तो अच्छा हम भी सोचे परस्यू कर लेते हैं। अच्छा मतलब सोच के नहीं किए। अच्छा मतलब घर में सब इंजीनियरिंग थे तो मतलब वैसे आपका? मेरा तो मैं शुरू से ही टेक्निकल स्किल्स में अच्छे हैं, थोड़ा लॉजिकल दिमाग है, अच्छा लगता है, कंप्यूटर्स अच्छा लगता है, गेम्स खेलते हैं, सो वहाँ से आया इंजीनियरिंग का। मतलब गेम खेलते हो तो मतलब गेमिंग के सेक्टर में कुछ मतलब गेम वगैरह बनाने में या कुछ ऐसा इंटरेस्टेड हो? गेमिंग के सेक्टर में तो अभी नहीं इंटरेस्टेड है। गेमिंग के सेक्टर मतलब बनाने में, गेम वगैरह बनाने में? नहीं, गेम डेवलपर तो नहीं, आई डोंट थिंक कि उसमें इंटरेस्ट है, मतलब उसका फ्यूचर भी नहीं है अभी इंडिया में, अभी तो ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे टाइम लगेगा उसमें, अभी बहुत ज़्यादा हासिल करना पड़ेगा, तो उधर मेरा उतना वो इंटरेस्ट नहीं है। बट हाँ, इंजीनियरिंग मतलब कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी के साइड में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो करना चाहेंगे। ओके। अभी आप लोगों का कौन सा मतलब ईयर है? अभी तो थर्ड ईयर जस्ट स्टार्ट हुआ है। सबका थर्ड ईयर है ना? अच्छा मतलब थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है? हाँ जी। अच्छा मतलब 2 साल ऑलरेडी बिता चुके हो एज ए इंजीनियरिंग, तो मतलब एक स्पेशल एक मतलब होता है ना, इतना साल 2 साल बिता चुके हो मतलब फ्रेंड्स लोगों के साथ, तो एक स्पेशल मतलब एडवेंचरस मोमेंट या फिर एक फ़नी मोमेंट हम हमारे व्यूज़ को बताना चाहोगे आपके इंजीनियरिंग लाइफ का? सच तो फ़नी या एडवेंचरस नहीं है, मेरे को लगता है इंजीनियरिंग लाइफ का हर दिन फ़नी होता है, हर दिन एडवेंचरस होता है। आपका? मेरा स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स के साथ जितना रहता है हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, हम लोग जैसे कहीं कहीं घूमने भी जाते हैं, वो भी एक स्पेशल मोमेंट बन जाता है हम लोग के लिए। फ्री टाइम रहता है, दिमाग भी फ्री रहता है, कुछ सोचने का मन नहीं करता, बस एट द मोमेंट जीते रहो। और रेगुलर हम मतलब जब भी हम लोग का मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला रहता है या एग्ज़ाम खत्म हो जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा चिल करने के लिए कभी भी रात को या सुबह कभी भी हम लोग पूरी प्लान हम लोग का रैंडम बनते रहता है। भुवनेश्वर में तो पूरी सबसे नज़दीक है, हम लोग 4-5 दोस्त लोग मिलकर, जैसे कहा दोस्त लोग के साथ अच्छा लगता है, तो हम लोग सब कोई 4-5 दोस्त लोग मिलकर पूरी का ट्रिप मार लेते हैं। जी बिल्कुल, दोस्त लोग तो इंजीनियरिंग लाइफ में मतलब एक मसाले टाइप का होते हैं जो कि थोड़ा लाइफ में छूंक मार देते हैं। अभी मतलब इंजीनियरिंग लाइफ में करते हो, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो बच्चा होता है वो कुछ भी रिलेटेड हो, डिप्रेशन से गुजरता है, स्ट्रेस से गुजरता है, एग्जाम और फियर ऑफ एग्जाम भी उनका रहता है। तो चलिए हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से पूछते हैं उससे कैसे क्या टैकल करना है और कैसे उसको ओवरकम करना है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं, मतलब कोई अगर उनसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है या फिर कुछ हो रहा है तो वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, तो उसको कैसे क्या मतलब ओवरकम करना है या फिर कैसे टैकल करना है उस चीज़ को? कि मेरा ऐसा मानना है कि डिप्रेशन स्ट्रेस तो लाइफ में होते रहते हैं, हर एक फील्ड में होती है, इंजीनियरिंग में नहीं, बाकी हर फील्ड में होंगे। और जितना मैंने अपने जाना है अपने सीनियर से, ये इंजीनियरिंग लाइफ में ये फर्स्ट सेकंड ईयर तो बस बीत जाता है, थर्ड ईयर के एंड में जब कंपनी जाती है, जो भी मेजर स्ट्रेस और जब भी मेजर डिप्रेशन होता है वो यही प्लेसमेंट वेव जब स्टार्ट होता है तब से होता है। तो मेरा यह कहना है कि अगर आप हसल कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप करते रहो, आपको आज रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आप मतलब मेरा मोस्टली परसेप्शन ये कंपनी के रिगार्डिंग रहेगा कि अगर आपको आज कंपनी नहीं मिल रही है, आपको आज सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, आप कंटिन्यूस हसल करते रहो, मेहनत करते रहो, कभी ना कभी किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपका होगा, आपको मेहनत करते रहना है, आप उसमें लगे रहो, आप डिप्रेस हो लेकिन उससे खुद ही ओवरकम करना पड़ेगा तुमको, ठीक है? तो उसको आपको करते रहना होगा। जी बिल्कुल सही कहा, मतलब हसल करना नहीं छोड़ना और कभी उम्मीद मत छोड़ना, अगर उम्मीद छोड़ दिया तो सब कुछ छूट जाएगा। स्ट्रेस आ जाता है, मतलब क्लास जाते हैं बच्चे, फिर उसके बाद असाइनमेंट वगैरह का भी होता है, तो बहुत सारे बच्चे ये सब चीज़ में स्ट्रेस फील करते हैं, मतलब थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, तो उसको कैसे क्या ओवरकम करना है? स्ट्रेस वैसे लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, हम नहीं लेते, हम भी एडवाइस करेंगे किसी को स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। जी वो तो सही है पूरा। और दूसरे को देख के मतलब ऐसा कुछ करना, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए कि वो ऐसा कर रहा है, इतना बढ़िया कर लिया। अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे मतलब ज़्यादा डेवलप करोगे तुम अपने आप में, तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। मतलब अपना एक जर्नी बनाओ, तुम ऐसा जर्नी बनाओ जो तुम आगे चल के सुना सको कि हम ये किए थे, ये किए थे, कुछ यादें बनाओ। भाई इंजीनियरिंग करने आए हो, बहुत ही अच्छा बात बोले, इंजीनियरिंग करने आए हो यादें बनाओ, ना कि स्ट्रेस लेके अपना इंजीनियरिंग का लाइफ ख़राब करो इधर। तो एक टाइम आता है एग्ज़ाम का भी, जब नए बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर में होते हैं, उनको एग्ज़ाम का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा फील होता है, मतलब कैसे क्या मतलब करना है, कैसे क्या पढ़ना है, उनको समझ में फर्स्ट ईयर में नहीं आता है। तो मैक्सिमम फर्स्ट ईयर बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे, मतलब जो अपकमिंग इंजीनियरिंग मतलब आने वाले हैं उनके लिए एक स्पेशल मैसेज एग्ज़ाम फियर के ऊपर? एग्ज़ाम फियर तो खैर काफ़ी नॉर्मल है, सबको होता है एग्ज़ाम फियर, जो पढ़ लिया है बहुत ज़्यादा उसको भी होता है, जो नहीं पढ़ा है उसको भी होता है, और कुछ लोगों को नहीं भी होता है जैसे। मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर में था कि मतलब जिस दिन अभी फर्स्ट एग्ज़ाम देने वाले थे ऑफलाइन, फर्स्ट सेमेस्टर का तो ऑनलाइन हुआ था, दूसरा एक ऑफलाइन हुआ था, तो वो देने जा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस थे कि फेल हो जाएंगे, ज़्यादा पढ़े नहीं थे, ऑब्वियसली उतना ज़्यादा पढ़े नहीं थे, डर लग रहा था बहुत फेल हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मोस्टली यूट्यूब का वीडियोस देखें और ये सब देखें, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टेंशन लेने से ना क्या पढ़ाई वढ़ाई हो नहीं पाता है। तो अभी अगर आपके पास 1-2 दिन टाइम है,
उस 1-2 दिन में थोड़ा आप 1 शॉट वीडियो देख लिए, कुछ इधर उधर का सोल्यूशन देख लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इवन असाइनमेंट्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, उसी में से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है, एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो उसी में से आता है। सो वो बेटर रहेगा। स्ट्रेस लेके बैठे रहने से बढ़िया है कि 5 क्वेश्चन कर ले, हो सकता है कि उसमें से कोई एक आ जाए, ठीक है। अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे, पास तो हो ही जाते हैं बच्चे फर्स्ट ईयर, फेल कहाँ ही होता है कोई इतना जल्दी। अब एकदम स्ट्रेस ले लिए, पढ़ नहीं पा रहे हो तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस में तो कोई काम नहीं हो पाता है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस है, उसी में काम करते रहो, धीरे धीरे स्ट्रेस कम हो जाएगा। ध्यान नहीं देना है स्ट्रेस पे, कुछ करते रहोगे तो स्ट्रेस नहीं होगा, बैठते रहोगे तो बहुत स्ट्रेस। ओके, आई गेस कि जूनियर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मैसेज दे दिया है अभ्यानंद सिद्धार्थ ने अच्छा सा मैसेज दे दिया है जूनियर लोगों के लिए। मतलब एग्ज़ाम का प्रेशर बिल्कुल ना लीजिए, आराम से, मतलब स्ट्रेस भी मत लीजिए, अपना लाइफ एंजॉय करिए, पढ़िए अच्छे से, मतलब सब कुछ हो जाएगा। तो चलिए एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं हमारे मतलब जो स्टूडेंट लोगों के साथ है। रैपिड फायर क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन, उनका जवाब सुनते हैं उनसे। तो चलो एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? IGT और ऑपरेटिंग सिस्टम OS। अच्छा, और फेवरेट लैंग्वेज? जावा ऑब्वियसली। जावा के अलावा मतलब? पाइथन अभी मैं सीख रहा हूँ, तो मैं भी पाइथन हो सकता है मेरा। आपका फेवरेट लैंग्वेज? जैसे मेरे को मैथमेटिक्स ज़्यादा पसंद है, तो हमको फेवरेट लैंग्वेज? जावा। अभी ओनली लैंग्वेज जावा ही आता है कि कॉलेज में वही पढ़ा गया, अदर लैंग्वेज हम ट्राई किए नहीं है। अभी बोल नहीं सकते कौन सा फेवरेट है कौन सा फेवरेट नहीं है, बट अभी पढ़े जावा है तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, और फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट मतलब हमको मैथ्स ज़्यादा अच्छा लगता है, तो हमको जो मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे मतलब ज़्यादा आसान लगता है, ज़्यादा को रिलेट कर पाते हैं। अच्छा, मैथ के टॉपर। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट? फेवरेट सब्जेक्ट अभी इस सेमेस्टर में देखे तो थ्योरी ऑफ कंपटीशन है, और लैंग्वेज में अगर देखें तो C++ हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। C++ मतलब पहले से किए हो गए? हाँ, हम फर्स्ट ईयर में आने से पहले C++ किए थे, फिर यहाँ जावा किए, बट हमको ज़्यादा कन्वीनियंट C++ लगता है, तो वही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट। ओके। तो गाइज आशा करते हैं आप लोगों को बहुत कुछ जानने को कुछ मिला होगा। जी हाँ, इंजीनियरिंग के ये 4 साल देखते देखते कभी भी बीत सकते हैं, तो आप मस्त एंजॉय कीजिए, पढ़ाई भी करिए उसके साथ, और हाँ, दोस्तों के साथ मिलना घूमना बनता ही है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है। और इंजीनियरिंग में स्ट्रेस, डिप्रेशन, फियर ऑफ प्लेसमेंट, क्लासेस जाना ना जाना, ये सब होता रहता है। लाइफ का ही एक इंजीनियरिंग एक पार्ट है। सो गाइज, जैसे कि हमारे स्टूडेंट आरजेस, फैकल्टी सर और आप ही के स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने मैसेज दिया था, बी काम, बी पेशेंट, और लाइफ के साथ साथ इंजीनियरिंग का ये 4 साल भी आप मज़े लेते रहिए। टिल देन स्टे ट्यून टू स्वर रेडियो 9.4। With that, your favorite student RJ Rudra signing out with cameraman Rijit.